الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے منبع خیر و برکت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج علم دین حاصل کرنے کی یہ 9ویں نشست ہے۔ 8 نشستوں میں ہم نے نماز کے شرائط، فرائض اور اس کے علاوہ وضو، غسل اور طہارت کے دیگر مسائل ہم نے سیکھے۔ آج اللہ کی رحمت سے ہم نماز کے واجبات سیکھیں گے۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ اگر بھول کر رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ نماز میں جس کام کو، جس عمل کو اسلام نے واجب کہا، اگر وہ بھول کر رہ جائے، یہ ذہن میں رکھیں، بھول کر یہ واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے اس کی کمی پوری ہو جاتی، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ جان بوجھ کر اگر واجب چھوڑ دیں تو پھر سجدہ سہو سے نماز جو ہے وہ اس کی کمی پوری نہیں ہوگی، بلکہ اس کو لوٹانا واجب ہوگا۔ اس کو واجب الاعادہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر ہم نے واجب جو ابھی آپ سنیں گے بھول کر چھوڑ دیا تو پھر ہمیں اسلام نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ سجدہ سہو آخری رکعت میں کر لیں، آپ کی نماز مکمل ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کے اندر اب یہاں ایک اہم بات آپ کو جو عرض کرنی وہ یہ، اب نہ بھول کے چھوڑا نہ جان بوجھ کے چھوڑا، پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں سیکھا نا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار یہ چیز جو ہے وہ واجب ہے، تو اب وہ اپنی نماز کا کیا کرے گا؟ تو یہ ظاہر سی بات اس کی غفلت ہے، اس کی کوتاہی ہے۔ اس کو سیکھنا چاہیے تھا کہ نماز بھائی اللہ، اب ہم سے کوئی پوچھ لے، ایک کافر ہم سے پوچھے کہ ہمیں بتائیں آپ کے لیے ایمان کے بعد بھائی زندگی میں سب سے قیمتی چیز تمہاری کون سی ہے، تو ہم بتائیں گے یار نماز ہے، یہی کہیں گے نا۔ کوئی ہم سے غیر مسلم پوچھے گا تو ہم کہیں گے کہ بھائی نماز جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا جہاں کے تمام دولت سے قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ ہم نے کہہ دیا دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے یہ نماز قیمتی اور واقعی قیمتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ 1,00,000 روپے کی گٹی اپنے بیٹے کو دیں اور اس کو کہیں فلاں بینک اکاؤنٹ میں اس کو رکھوا کے آ، اس کو اگر وہاں کے طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے تو آپ سمجھائیں گے یا نہیں سمجھائیں گے؟ بیٹا کیشیئر کو دینا، اچھے طریقے سے رسید لے لینا، ریسیونگ جو ہے وہ لے کے آنا، یہ ہم کہتے ہیں نا۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 1,00,000 روپے بڑا مشکل سے حاصل ہوا، بڑا قیمتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ سیو کرنا چاہتے ہیں۔ یار نماز اتنی قیمتی اور اس کی سیفٹی کا سامان ہی نہیں، اس کو سیکیور کرنے کا سامان ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں انہوں نے بتایا نا کہ واجب رہ جائے تو تم سجدہ سہو کرو گے تاکہ تمہاری نماز کی کمی پوری ہو جائے۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو تو اس نماز کو دوہرا لو تاکہ میدان معاشر میں کہیں تمہارے اکاؤنٹ میں نماز مائنس ہی نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کی ہر چیزوں میں ہوشیار، سمجھدار، اور کبھی نہیں کہتے کہ یار اللہ مالک ہے، یہ تجوری کو آج تالا نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں حالانکہ اللہ تو مالک ہے نا، حفاظت تو اسی نے کرنی، کیوں تالا لگاتے ہیں؟ اور نماز کا کہہ دو، کہتے ہیں اللہ مالک ہے، یار کوئی مسئلہ نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری زندگی کے ہر شعبے میں تیری حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنی دنیا کی چیز میں تو ہوشیار رہتا ہے، سمجھدار رہتا ہے،
अलर्ट रहता है और अल्लाह की इबादत में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बंदा उसको सीखे ही ना, कहे कि बस ठीक है भाई जैसे है चलती रहे, तो दीन अल्लाह के नबी ने फिर बयान क्यों किया है? अगर हमने उसको अप्लाई नहीं करना है तो बयान क्यों किया है? वो इसीलिए बयान किया है कि मेरे उम्मती ये समझे, सीखे। जैसे एक सहाबी मस्जिद नबवी में आए और उन्होंने नमाज पढ़ी, नए नए थे, कोई अराबी थे, देहाती थे, गलत नमाज पढ़ी। नबी करीम ने कहा कि जाओ दोबारा पढ़ो। उसने दोबारा पढ़ी, फिर गलती की, फिर उसने अर्ज किया कि हुजूर मुझे सिखा दें। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे सिखाया। तो हमें अल्लाह का सोना नबी जब सब सिखा दिया है और हम उसको ना समझे, सीखें, तो ये एक बहुत बड़ी कोताही होगी। तो वाजिबात का हुक्म मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब वाजिबात कौन कौन से हैं? सबसे पहला, जब हम नमाज शुरू करते हैं तो मैंने आपको बताया था तकबीरे तहरीमा कहना फर्ज है, लेकिन उसमें अल्लाह अकबर कहना वाजिब है। जैसे अगर किसी ने कहा सुबहान अल्लाह और नमाज शुरू कर दी, अल्लाह का नाम लिया ना, अब नमाज तो उसकी शुरू हो गई, लेकिन अल्लाह अकबर नहीं कहा तो वाजिब छूट गया, वाजिब तर्क हो गया। तो इसलिए अल्लाह अकबर कहना, तकबीरे तहरीमा फर्ज और उसमें अल्लाह अकबर कहना वाजिब है, ये बात याद रखें। अब उसके बाद हमने नमाज शुरू कर दी, सुबहानक अल्लाह हमने पढ़ा, ये न वाजिब है न फर्ज है, ये सुन्नत है नबी पाक अलैहिस्सलाम की। उसके बाद अलहम्द हम पढ़ते हैं। अलहम्द, अलहम्द के अलिफ से, हमजा से लेकर वलद्दालीन के नून तक हर आयत और हर लफ्ज वाजिब है। इमाम शाफी के नजदीक फर्ज है, इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक ये वाजिब है। मुतलक किरात फर्ज है, जो मैं पहले फराइज में बता चुका हूं। अब एक आयत या एक लफ्ज भी अगर सूरह फातिहा का रह गया तो वाजिब तर्क हो गया। एक लफ्ज भी बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये पूरे लफ्ज ठीक पढ़ने हैं और पूरे पढ़ने हैं। अगर लफ्ज चबा गए, गलत पढ़ गए तो वाजिब हमारा तर्क हो गया, और जानबूझ के छोड़ा तो नमाज वाजिबुल इयादा होगी। इसके बाद तीसरा वाजिब, नमाज पढ़ते हुए सूरह फातिहा जब आपकी कंप्लीट हुई, वलद्दालीन आपने पढ़ा, अकेले पढ़ रहे इमाम के पीछे तो आपने खामोश रहना है, अकेले पढ़ रहे थे या इमाम के लिए ये हुक्म। अब वलद्दालीन के बाद सिर्फ दो चीजें कहने की इजाजत है। एक आमीन, अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं या इमाम पढ़ रहे हैं आमीन कहेंगे, और उसके बाद अगर सूरत पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। यानी सूरह फातिहा के बाद सिर्फ ये दो चीजें कहने की इजाजत है। उसके फौरन बाद आपको 3 छोटी आयतें या आपको छोटी सूरत पढ़नी वाजिब है। अब यहां इस मसले को और तवज्जो से ज़हन में रख लें कि किसी ने सूरह फातिहा पढ़ी, नमाज अकेले, जैसा आप सुन्नत नफल अकेले पढ़ते हैं, उसने कहा वलद्दालीन, अब खामोश हो गया। जैसे उसके ज़हन में कोई ख्याल आ गया, तवज्जो उधर चली गई, दुकान की तरफ चली गई, किसी टेंशन में चली गई, किसी से पैसे लेने थे या किसी की तरफ पैसे फंस गए थे या देने थे, हो जाता है ना। वलद्दालीन के बाद रुक गया, ना उसने आमीन ना बिस्मिल्लाह, किसी वजह से नहीं रुका, ऐसे खामोश खड़ा रहा। अब अगर वो इतनी देर खामोश रहा, सुने कितनी देर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अब ये कितना टाइम लगा है? 4-5 सेकंड। ये 4-5 सेकंड वो खामोश रहा, फिर उसने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी तो वाजिब तर्क हो गया। बात समझ आ गई? मसला समझ आ गया? सूरह फातिहा के बाद आमीन और बिस्मिल्लाह की गुंजाइश है। इसके अलावा अगर कोई खामोश रहा बिला वजह
या उसने कुछ और ही अपनी सिस्टम शुरू कर दिया तो उसका वाजिब तर्क हो गया। मुत्तसिल दोनों सूरतें होनी चाहिए। उसके बाद ये 3 वाजिब हो गए। चौथा वाजिब है जो छोटी सूरत पढ़ते हैं वो भी वाजिब है, जैसे कुल वल्लाह शरीफ पढ़ते हैं या 3 आयतें पढ़ते हैं, ये वाजिब है। किसमें वाजिब है? ये फर्ज की पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा भी वाजिब, छोटी सूरत भी वाजिब, आखिरी 2 में फर्ज में वाजिब नहीं है। बाकी जो वितर हैं, सुन्नतें हैं, नफल हैं, उनकी तमाम रकातों में सूरह फातिहा और छोटी सूरत क्या होती है? वाजिब होती है। ये याद रखें। और मुत्तसिल हो, मिली हुई हो, बीच में वक्फा बिला वजह ना आए, ये वाजिब हो गए। 4-5 वाजिब हो गए। उसके बाद आपका 5वां वाजिब ये है कि आपने सूरत पढ़ ली, अब फौरन रुकू में जाना भी वाजिब है। कुफुवन अहद ये कह लिया, अब बिला वजह खड़ा होगा, जो मिकदार आपको बताई 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार खड़ा रहा तो वाजिब तर्क हो गया। उसको अहद कहने के बाद अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाए, ये 5वां वाजिब है, फौरन रुकू में जाना। अब रुकू आपने किया है तो एक वाजिब होता है तादीले अरकान, यानी हर रुकन को ठहर ठहर के अदा करना, ठहर ठहर के अदा, यानी अब रुकू में गए तो उसमें थोड़ा सा टिक जाना, आराम से उसको करना, ये भी वाजिब है। अब कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनको इतनी जल्दी होती है, उनकी नमाज देख के जो ना अजीब ही हंसी आ रही होती है कि जैसे वो अपने जिस्म के जरिए तस्बीह पढ़ रहे हैं, दाने आगे पीछे कर रहे हैं, वो इतनी तेज नमाज पढ़ते हैं, रुकू सजूद फौरन फौरन, ऐसा नहीं। वाजिब तर्क होता है सुकून से हर रुकन को अदा करें। उसके बाद जो है 7वां वाजिब है, जब आप रुकू से खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसको कहते हैं कौमा। क्या कहते हैं? कौमा। ये कौमा है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा होना। अब ये भी वाजिब है, इसमें ठहरना, एक सुबहान अल्लाह की मिकदार। जैसे अब यूं रुकू कर रहे थे, उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यूं कमर हमारी सीधी हो जाए, फिर अल्लाह अकबर कह के हम सजदे में जाएं। अब किसी ने यूं रुकू किया, अब यूं हुआ और फिर यूं चला गया, यानी सीधा हुआ ही नहीं है, तो उसका क्या होगा? वाजिब तर्क हो जाएगा। और वो जानबूझ के कर रहा है तो उसकी नमाज जो है वो लौटानी उस पर वाजिब हो जाएगी। अब ये 7 वाजिब हो गए कौमा करना। उसके बाद 8वां वाजिब है, आप सजदा करते हैं, एक मैंने बताया था एक रकात में 2 सजदे फर्ज हैं और उसमें कोई फासला ना हो 2 सजदों में। जैसे एक मसला भी बताया था आपको कि एक सजदा किया, भूल गए, खड़े हो गए, अगली रकत बीच में फासला आ गई, लेकिन सजदा तो करना है। अब बीच में एक रकत का फासला आना, ये वाजिब का तर्क है। मतलब क्या हुआ कि हर रकत में जो 2 सजदे हैं वो एक साथ करना, एक करना फिर बैठना फिर दूसरा करना, ये भी वाजिब है, इनका मुत्तसिल इस तरह होना। 9वां वाजिब जो है वो है कि जब आप 2 सजदों के दरमियान बैठते हैं उसको कहते हैं जलसा। उसको क्या कहते हैं? जलसा। अब वो भी सीधी कमर करके, कोई मजबूरी नहीं है तो उसमें एक सुबहान अल्लाह की मिकदार रुकना बैठना, ये वाजिब है। अब कई लोग जो हैं वो एक सजदा किया, थोड़ी सी गर्दन उठाई, फिर नीचे लगे जैसे कबूतर दाने चुन रहा है, एक किया भाग के फिर दूसरा किया, ये वाजिब का तर्क है। सजदा करके फिर आपको यूं बैठ जाना है सुबहान अल्लाह की मिकदार, फिर अगला सजदा आपने करना है, ये वाजिब है। इसके बाद चंद मिनट रह गए। अब इसके बाद जो वाजिब है वो है जो 4 रकात वाली नमाज है, उसमें चाहे वो सुन्नत हो, चाहे नफल हो, चाहे फर्ज हो, उसकी 2 रकात पर कादा करना ये वाजिब है। 2 रकात पर क्या करना?
कादा करना। जैसे आप जोर की 4 सुन्नतें पढ़ते हैं तो 2 रकत पे जो बैठते हैं, असर में बैठते हैं, इशा की सुन्नतों और फर्जों में बैठते हैं, ये 2 रकत पर अत्ताहियात के लिए बैठना वाजिब है। इसको कहते हैं कादाए ऊला, पहला कादा। ये बैठना हमारे ऊपर वाजिब है। किसी ने छोड़ दिया, तीसरी के लिए खड़ा हो गया तो अब उस पे सजदा साहब लाजिम होगा। इमाम ऐसी गलती कर जाते हैं, 2 पे बैठना था, नहीं बैठे, खड़े हो गए, अब उसमें हम लुकमा दे देते हैं। अब उसकी सूरतें हैं जो मैं बाद में किसी निशस्त में बयान करूंगा। अब वो लुकमा या तो ठीक होगा या गलत होगा। अच्छा, गलत होगा तो इतना गलत होगा कि या लुकमा देने वाले की नमाज जाया हो गई या इमाम की जाया हो गई। इमाम की जाया हो गई तो सारों की जाया हो गई। ये इतना अहम मसला लुकमे का। और ये कई जगहों पर ये गलतियां होती हैं। गलत जगह शौक होता है ना बोलने का, तो वो दे देते हैं। अब वो पता नहीं होता, ना इमाम को बाल दफा मसले का नहीं पता होता, नमाज पीछे जाया हो जाती है। अच्छा, बाल दफा सबकी नमाज जाया नहीं हुई, वो जो मसबूक थे, जो दूसरी रकत में तीसरी में मिले थे, उनकी जाया हो जाती लुकमा गलत लेने पर या गलत देने पर। तो ये लुकमे के मसाइल जो है ये इंशाल्लाह आपको एक पूरी निशस्त में समझाऊंगा, ताकि आप कभी भी नमाज किसी के पीछे पढ़ें तो आपको पता हो कि मुझे अब लुकमा देना है या नहीं देना। तो कादा उला ये भी वाजिब है। उसके बाद तीसरी रकात में कादा ना करना भी वाजिब है। मिसाल के तौर पर कोई गलती से बैठ जाता है, तीसरी रकत में बैठना उसने चौथी में था और तीसरी में बैठ गया, तो उसका क्या हुआ, वाजिब तर्क हो गया, उसको सजदा साहब करना लाजमी होगा। अब इस तरह एक और बड़ा अहम मसला, फर्ज नमाज हम जो 4 पढ़ते हैं, जोहर की 4 फर्ज पढ़ते हैं, असर में 4 पढ़ते हैं और इशा में 4 पढ़ते हैं। इसी तरह सुन्नते मुअक्कदा, सुन्नते मुअक्कदा, जोहर की 4 जो रखते हैं वो सुन्नते मुअक्कदा हैं। तीसरी नमाज वितर, ये 3 नमाजें जो 2 से ज्यादा हैं। 4 सुन्नते मुअक्कदा जोहर की, जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, इशा के 4 फर्ज और 3 वितर। इसमें एक वाजिब है जो आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए डिटेल से नमाजें बताई। इनमें अत्ताहियात अब्दुहु व रसूलो जब 2 रकत पर हम पढ़ेंगे और तीसरी के लिए खड़े होंगे तो अब्दुहु व रसूलो के बाद कुछ ना पढ़ना भी वाजिब है, कि कुछ नहीं पढ़ना। यानी अब किसी ने कह दिया अल्लाह, दुरूद होता है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये 3 लफ्ज बोल दिए, उस पे सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। पहले कादे में अब्दुहु व रसूलो के बाद फौरन खड़ा होना वाजिब है। कुछ पढ़ दिया, कौन कौन सी नमाज, सुन्नते मुअक्कदा, फर्ज और वित्र। इसमें अगर आपने 2 रकत पे अब्दु व रसूलों के बाद कुछ पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्ले अला पढ़ा, खड़े हो गए, तो आप पर जुर्म नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अब ये 3 बार सुभान अल्लाह की मिकदार बन जाती, तो वो आपने ताखीर कर दी तो ये वाजिब तर्क हो गया। या खामोश बैठे रहे फिर भी वाजिब तर्क हो गया। ये जहन में आपने ये मसला रखना है। और ये अमूमन पेश आता है कि हम जो है इमाम पढ़ देते हैं, फिर उन पे भी सजदा लाजिम हो जाता है उनको। हम बाल दफा सोचते हैं यार इसने सजदा साहब किया, गलती तो हुई नहीं, तो वो गलती जो है उनकी वो अत्ताहियात में बाल दफा हो जाती है कि अब 2 रसूलों के बाद दुरूद पाक आखिरी रकत समझ के उन्होंने पढ़ दिया, और पढ़ना नहीं था, अब वो खड़े हुए और फिर सजदा साहब उन पे भी लाजिम होगा। इसी तरह चौथी जो आप जो रकत पढ़ेंगे तो उसमें कादा खीरा फर्ज है, लेकिन उसमें अत्ताहियात पढ़ना क्या है, ये वाजिब है। और फिर एक वितर के कुछ वाजिबात, तकबीरे कनूत भी वाजिब है, तकबीरे कुनूत भी वाजिब है। जो अल्लाह अकबर तीसरी रकत में करके आप अल्लाहुम्मा इन्ना नस्ताइनु का पढ़ते हैं, ये अल्लाह अकबर कहना भी वाजिब है। ऐसे खाली जो है वो यूं कर लेना ये वाजिब का तर्क है। तो जो मतलब है कि कहना तो वो जुबान से कहना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
زبان ہلے اور اپنے کان سنے، یہ نہیں کہ اللہم انا نستعینک، اب یہ واجب ترک ہو گیا۔ وہ تکبیر قنوت واجب، تکبیر قنوت واجب ہے، قنوت کے لیے جو تکبیر ہوتی ہے۔ اور دوسرا وتر کا ایک اور واجب وہ ہے دعائے قنوت پڑھنا۔ دعائے قنوت مطلب اللہم انا نستعینک کا یہی واجب نہیں ہے، کئی قنوت کی دعائیں احادیث میں وارد ہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا پڑھنا واجب ہے۔ کسی کو جیسے دعائے قنوت یہ جو معروف ہے ہمارے نزدیک وہ نہیں آتی اور وہ اس کی جگہ پڑھ لیتا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یعنی تکبیر قنوت کے بعد دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ وقت ختم ہوا، پھر انشاءاللہ بقیہ مسائل اگلی نشست میں۔ کل چونکہ یہاں سلسلہ ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ 20 منٹ کی نشست یہ لگے گی، کل 10ویں نشست ہے، اور اس میں سجدہ صاحب کا طریقہ اور پھر نماز کا جو طریقہ بیان کریں گے تاکہ سابقہ تمام مسائل ایک دفعہ ریپیٹ بھی ہو جائیں گے اور کچھ شب برات کے مسائل آپ کو عرض کر دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی دولت سے بہرمند فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ اے اللہ کریم جو ہم نے علم سیکھا اس کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحمتوں کا نزول فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، شب برات سے پہلے پہلے بخشش ہمارا مقدر بنا، عافیت ہمارا مقدر بنا، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول